Hi, my name is Gibran. Welcome once again to Action Reaction. Thank you guys. Thank you for your comments. Thank you for your likes. Thank you for the subscriptions. और क्या कहते हैं? और भी कुछ कहते ही है ना? हाँ, वो press the bell icon ताकि नोटिफिकेशन आ जाए कि मैं वीडियो अपलोड करूँ. मैं आप ही की तो रिक्वेस्ट इस वक्त एंटरटेन कर रहा हूँ. So might as well do that, you know. It's been fabulous to be back with Coke Studios with season 15, and we've done quite a few songs by now. But it continues because मैंने late start किया तो naturally it's going to take a little while. But we're down with how many songs? We are down with 1, 2, 3, 4, 5. आज है हमारा 6 songs. How do you pronounce this? This is very Pashto, huh? Harkale? That's what I guess. Zahoor and Rahma. Yeah, Rahma sounds very Arabic though. Pata nahi, I don't know. I don't know any of these. This is the first time I'm going to hear it. It's based on the recommendations jo aapne di hain, and I'm not going to keep you waiting. I'm going to dive right into it right after the intro. And here we go, my friends. Studio, season 15. Season 15. What a sight, yeah. Is it a set or is it an actual location? Oh, man. Oh, it's like the boys are back, you know, kind of thing. Jules. جوان زمان جوان دستا بلشانه ده هر کله زکاوم زپا دروازه سترگو تو را کئی مالخ کولا جپسه سروما لکاله وانه سارما ورپسه لاردم خانه دزلکو सदा श्वद खोला उस पल्ले रागे प दुनिया सोच में चिब्याद सी कोल्ले तमियो मकाम तेरा सोल्ले नशा मती ज़ाप पुयोल्ले कोले वाली दे सी कोल्ले सोच में चिब्याद सी कोल्ले तमियो मकाम तेरा सोल्ले कोले वाली दे सी कोल्ले Oh man! What a Pashto English mix. Oh, gorgeous woman. Yeah, what a start. Such a catchy undertone. Oh man. I walk to the unknown with you. Moving to the moon when I look at you. On the other side, I sing it back to you. सोच में चिब्याद सी कोल्ले तमियो मकाम तेरा सोल्ले नशा मती ज़ाप पुयोल्ले कोले वाली दे सी कोल्ले वाली दे सी कोल्ले सोच में चिब्याद सी कोल्ले तमियो मकाम
Oh man. Achha, it's not such a long song, you know. Usually we ओ यार ये क्या बताऊं मैं, ये क्या था? 4 minutes of a intense blast जिसे बोलते हैं ये तो वो था यार. अच्छा, I've always been fascinated with Pashto. I've always, मुझे समझ नहीं आती by the way Pashto, but मुझे याद है there was this song called Kurban from Coke Studio. यार, it took my, it's like it pierces through into your soul. वो heart hoot नहीं, बस it goes straight into your soul. There's something about their culture, there's something about their language, there's something about, यार I'm blown away. There's so much. इसका क्रिएटिव डायरेक्टर कौन है ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंड आई रियली वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द गाय. यार रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इट इज बाय फार द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सेट्स अमंग्स ऑल द वीडियोस जो मैंने अभी तक देखी हैं. मैन सॉरी, वेट करो, बहुत जरूरी है. creative production strategist, production head, creative and project head, वजीहा creative manager, शेरी खटक, उत्तरी खैर. मेक सेंस यार ये creative की बहुत लंबी टीम है by the way. There's so many names to take. I'll post them. Okay, where do I begin? Zahoor's voice. यार नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से. सो म्यूजिक स्टार्ट होता है विद अ वेरी सटल compressed, dubbed down. It's not piercing, it's not a full bodied music. Beat भी is subtle, settle down के middle ranges में चल रही है. ना lower notes है, ना बहुत high notes है, कोई दरमियान में रखी हुई है, बड़ी narrow band रख के. It seems like, इसको लेयरिंग बोलते हैं, म्यूजिक लेयरिंग बोलते हैं. बट गाने के अंदर अब ज्यादातर वो उन नोट्स पे रहे हैं. ये बड़ी कोई इंटेलिजेंटली म्यूजिक को इसने डिजाइन किया, जैसे भी किया है. डिजाइन तो नहीं बोलते बट प्रोड्यूस किया है. नेचुरली जुल्फी है. So it goes without saying, इस बंदे के बारे में तो बात करना भी बेकार है यार. He's beyond, he's done things beyond our expectations, कम से कम मेरी expectations के beyond, और सरप्राइज करता है हमेशा. He's माशाल्लाह, he's really creative. अच्छा, बार म्यूजिक ऑन वन साइड उसकी बात करते हैं. Zahoor starts और वो उसी parallel to those beats इसके लिरिक्स वहां पे टैप इन करते हैं उसी वोकल बेल्ट को जो कॉम्प्लीमेंट करे उसको. यार क्रूड वोकल्स, कोई प्रोसेसिंग नहीं ज्यादा, एंड दो देयर इज टेक्निकली देयर इज, बट द वे इट्स केप्ट क्रूड. ना रिवर्ब ज्यादा है, यू नो, वॉइस मैनिपुलेशन बहुत कम. यार बहुत कमाल है. एंड एकदम से इतना बड़ा फ्लेवर आता है जब रहमा आती है, एंड देन शी स्टार्ट्स इन हर हस्कियर टोन्स जो होती हैं. याद है मैंने मोमना मुस्तसिम के बारे में बोला था, शी हैज अ वेरी एंजेलिक वॉइस. अगर उसका इंग्लिश वर्जन निकालना है यहाँ से निकाल सकते हैं. तो ये एक खास किस्म की आपकी वॉइस डिलीवरी का है हर एक की, क्योंकि अल्लाह ने फ़र्क बनाया सबको, तो हर एक की वॉइस फ़र्क होती है. बट कई लोगों के पास नेचुरली ये चीज़ होती है, उनमें हस्क होती है आवाज़ में. मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हस्की टोन्स होती हैं. जो लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, अरिजीत सिंह के अंदर हस्कीनेस है बहुत ज़्यादा उसकी, बल्कि उसमें ग्रिट भी है. एक्चुअली ग्रिट ज़रा भारी वाले टोन्स होते हैं. बहरहाल इसके अंदर ना लड़की में, रहमा में, शी हैज़ अ वेरी हस्की टोन्स, बड़े मज़े की उसकी हैं, सॉफ्ट सी, एंड वो इतना क्यूटनेस नहीं होती है किसी के अंदर. तो अगर वोकल क्यूटनेस सुनिए तो दिस इज प्रोबेबली वेयर इट वुड स्टैंड. यार आई वाज ब्लोन अवे. She has a very neutral dialect in the English language enunciation. So it sits very well. आपको बड़े आराम से समझ आएगा, कोई एक्सेंट नहीं है. So वो deep thick accents होते हैं ना, वो कॉकनी शॉकनी होती है in English. अगर आप ब्रिटेन की बात करो तो वो बड़ी मुश्किल होती है, या आयरिश तो बहुत ही मुश्किल है समझनी. So उनके thick accents होते हैं, इसमें नहीं है बिल्कुल भी. I don't know where she's from, मैंने पढ़ा नहीं है, ना मैंने चेक किया है. I just wanted to give my first hand reaction. तो मुझे लग रहा है लंबा हो जाएगा रिएक्शन, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ. बट ट्रूथ बी टोल्ड, मुझे इसकी आवाज़ की रेजोनेंस लगी, रिजेम्बलेंस लगी किसी के साथ, पर मैं आई कुडंट
पिन पॉइंट कि किसके साथ. मुझे ऐसे लगा कि कुछ पार्ट ऑफ द मेलोडीज वर आल्सो टेकन from or it resembles with some of the song as well. अभी वो भी मेरे ज़हन में नहीं, because off the bat इतनी चीज़ें याद ही रख सक रहा हूँ. इतनी अच्छा. मैं बात कर रहा था विजुअलाइजेशन की ना, तो जो वीडियो में बनाई है उन्होंने विजुअलाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है. इसकी खूबसूरती ये है कि सेट छोटा है, सारे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स उन्होंने दिखा दिए, आपको एस्टैब्लिश कर दिया ये कौन सा कल्चर है. मगर आप जो की सीन है ना, वो जो उनका जो वाटर बेड है, जो वो वाटर बॉडी कह लो उसको, दरमियान में द मिडल ऑफ द हॉल वो पानी आ रहा गिर रहा है, वो याद रखना, वो मेरे नज़दीक इज द की एलिमेंट फॉर जिसके अराउंड ये विजुअल क्रिएशन हुई हुई है पूरे सॉन्ग की. और वो अल्टीमेट जैसे कहते हैं ना कि अनवेलिंग होती है, या वो अनवेलिंग है एक्चुअली. बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं. बच्चा भाग रहा है and he grows up and he's there. रेडियो, ये ज़हन में रखना, ये बहुत ज़बरदस्त सिम्बलाइजेशन है. स्पेशली जो मेरे लिए जैसे कहते हैं ना कि वो जो एक की पिवटल शॉट होता है, वो था हाथ देखे थे उनके, they had color on it, और पानी बरस रहा है and it's washing it away. समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. I don't want to be more explicit than this. इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं. How music is going to transform, or how this music तो नहीं मैं सिर्फ कह सकता, because there's a deep element of love poetry in this. वो पोइट्री जिसको समझ आ रही है और इसका मैसेज वो समझ पा रहा है, वो ये समझ जाएगा कि love is going to ultimately transform so many things. It's going to wash away a lot of things. Pain is going to wash away. I don't want to exactly say it, but जो समझ रहे हैं बात को वो समझ गए होंगे अब तक, और जिनको नहीं समझ आई वो एक बार फिर से देखेंगे, उनको भी समझ आ जाएगी. सो it's so brilliantly done यार. It's a brilliant marvel, frankly speaking. मेरा ख्याल था कि हमने अच्छे वाले सारे कर लिए हैं गाने, बट आई रियलाइज के एक से एक भड़ के ट्रैक है. एंड जब मेरी बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, वीडियो जिसने देखी है इसको लाइक कर देना, पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करना. आई रिकमेंड कि आप डिसलाइक भी करें अगर आपको पसंद नहीं आती. कमेंट जरूर करना. डू मेंशन थिंग्स. अच्छा, मैं आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस, और मुझे बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको ज्यादा पसंद आए और उसका क्या क्या वो सिंबलिज्म का मतलब क्या आपके नजदीक है. इसमें मेरा ख्याल है कमो बेश तकरीबन 2 दर्जन के करीब इसमें ऐसी चीजें हैं जिसको आप आराम से पॉइंट आउट कर सकते हो, और हर एक का एक सिंबलिज्म है. बेशक 2-3 बार वीडियो देखनी पड़े, देखना. मेंशन करो कमेंट्स में कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और इस गाने में क्यों डाला है, और पोएट्री के साथ क्यों मैच करता है, और पूरे विजुअल एम्बियंस जो क्रिएट उन्होंने किया है उसमें वो कैसे बैठता है. ये आपकी भी इंटेलिजेंस का टेस्ट है. बल्कि हो सकता है मैं कुछ सीख लूं आपसे. कुछ नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये विजुअल आर्टिस्ट्री है मेरे को, मैं आई डोंट ओन इट, तो ये हो सकता है मैं आपसे कुछ सीख लूं. पर यार ये मेंशन जरूर करो, बिकॉज इट्स गोना रियली बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा. जिन लोगों को समझ नहीं आई है उनको समझ आना शुरू हो जाएगी. मे बी दे विल सी म्यूजिक फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और इतनी जबरदस्त प्रोडक्शन जब मिलती है ना, तो इट्स अ विजुअल ट्रीट. ये आंख को भी अच्छी लगती है, दिल को भी भाती है, मगर जहन को भी इसको समवॉट नर्चर करने की जरूरत है. तो हेल्प करो उन लोगों की भी. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, और मैसेजिंग के लिए बहुत जबरदस्त ये टूल है. तो मेक श्योर कि अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर करो. और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्या जाता तुम लोगों का, एक बटन ही प्रेस करना, बेल आइकन प्रेस करना, खत्म. नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा. टू ऑल योर ब्यूटीफुल गाइज आउट देयर, have a good day, good evening, good night, wherever you are, and I will see you soon in another video. Take care of yourself. Bye bye.